السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج اپنے سیگمنٹ فلم، کتاب اور لوگ میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ہندوستان کی ایک تاریخی شخصیت جسے اتہاسک کہا جاتا ہے، جس کی چھاپ آج بھی ہندوستانی تاریخ پر بڑی گہری ہے. یہ ایک بہت بڑا سٹیٹسمین، فلسفر، رائٹر، پروفیسر اور قانون دان تھا. اس کا نام ہے چانکیہ کوتلیہ، اور ساتھ ہی ہم نے زحمت دے رکھی ہے ایک اور بہت بڑے کیریکٹر سکندر یونانی کو. یہاں پر آج سکندر یونانی ایک ثانوی حیثیت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، صرف اس لیے کہ آج ہماری مین شخصیت چانکیہ ہے. سکندر کے ساتھ چونکہ اس کا سیاسی پالا پڑا تھا، اور یہ ایک طرح سے چونکہ اس کا کنٹمپریری ہے، اس لیے چانکیہ کوتلیہ کے بارے میں رائے زنی کرنے کے لیے ہم نے سکندر کو بھی دعوت دے دی. گل سنو کی ویسے مسئلہ کی بڑا بادشاہ تے میں ادھر تسی پہلی سیٹ تے میں کیوں نہیں بٹھایا؟ تم یہ دیکھو کہ تمہارے ساتھ کتنا بڑا مدبر بیٹھا ہے. تم یوں سمجھو کہ یہ ہندوستان کا ارسطو ہے. ارسطوٹل تھا نا تمہارا استاد، صحیح گل ہے. یہ تمہارے مد مقابل چندر گپت موریہ کا ارسطو تھا. تسی اے دے بارے اپنے نظریات چینج کیوں کر لینے؟ میں نے نظریات چینج نہیں کیے، ویسے ہم تھوڑی بہت موکری کیا کرتے تھے ایک زمانے پھر میں، کوئی سٹ سٹ لگی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ چانکیہ کوتلیہ کا شمار دنیا کے بہت بڑے سٹیٹسمین میں ہوتا ہے، بڑے عالم فاضل دانا لوگوں میں. مجھے جن باتوں سے اختلاف ہے وہ آج بھی موجود ہے. اچھا جی، وہ کی نہیں؟ وہ یہ کہ تم اتنے ذہین و فتین، اس قدر شاندار روشن دماغ ہونے کے باوجود انسکروپلس اور بے اصول تھے. تمہارا کوئی اصول نہیں تھا. تمہارا اصول صرف وکٹری، فتح، دشمن کی شکست، انتقام، یعنی نیگیٹو جذبوں سے بھرے ہوئے ایک شخص ہوتا. ایسے نیگیٹو ہونے دی وجہ نال میں ہندوستان نو سب تو بڑا خاندان دیتا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہندوستان پر حکمرانی کرنے والا سب سے تگڑا خاندان جس کی چھاپ بڑی گہری ہے وہ موریہ خاندان. سر تسی تے اشوکا دے بارے چ دسیا کہ اشوکا موریہ خاندان سے تھا، وہ وڈائچ تھا. اچھا جی، سانو کا دلی بلایا جو بانڈ گیری تسی کرنی ہے تے وہ جو کہہ رہے اگو تسی یہ بھی کہہ سکتے سی کہ نہیں وہ بات نہیں ہے، اگو ضرور وڑائچ کہنا سی. ہائے صدقے جاواں، پہلا اینکر جی دی ٹائمنگ بھی پرفیکٹ ہے. اچھا یہ کا دلی بلایا ہے؟ میں نے رنگ واسطے بلایا تھا. اچھا پہلا سوال میں کرتا ہی اس سے ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ میں نے کیوں بولا. تمہاری چانکیہ کوتلیہ کے بارے میں رائے کیا ہے؟ کیسا آدمی تھا؟ ایسا سیریسلی بتا. ایسا دا مطلب کہ کمال آدمی سی. یقین کرو، لڑائی اپنے پاس ایڈا پڑھیا لکھیا ذہین آدمی، اور اس تو اعلیٰ ٹنڈ میں آج تک نہیں لکھی. پھر وہی کامیڈی کر رہے تو. ہائے اللہ دی سکندر نے آخر سمجھ دے کی ہو. میں بنیادی طور پہ کامیڈی نہیں سا، میری ایک کھاک بڑی چھوٹی بھی ہو جاتی سی. جنگ دے دوران جنیاں ویلا مینو ہوندیاں سن، یقین کرو کسے نے بھی نہیں سی ہوندیاں. کئی باری میرے منہ نکل جاتا سی، اور پھر میں نے کہنا پہ جاتا سی میں نہیں کیتا، گھوڑے نے کیتا. اچھا گل سنا، میں ایڈے ویلا جو دل کرتے میں بلا لیندے ہو. پچھلی بار میں نمک دی کان تے بلا لیا سی. ہاں جی، لاسٹ ٹائم ہم نے انہیں کھیوڑا مائنز پہ بلایا تھا. اوتھے تہاڈا پتہ کڈا نقصان ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ نمک چٹ چٹ کے بیڑا غرق ہو گیا سی کس کا؟ گھوڑیاں دا. تو تمہارا بلڈ پریشر کیوں آئی ہو گیا؟ انہوں نے ویکھ کے میرا بھی ہو گیا سی. گھوڑے بھی کسے کھوتے دے پتر سن. اینا نمک چٹیا. اچھا کرسی صرف مین والی ہے، گل گل تھے کوئی نہیں. تعارف میرا انج کرایا کہ ساڈے آئی دے مہمان اے مین نے تے او دے گھوڑیاں دا بھی پوچھ لیا، او دے ڈانس دا، او دے ویلاں دا بھی پوچھ لیا. اجے تے شکر کرو نا میری امی دا نہیں پوچھیا. یقین کرو ایسا سال سب سی نا امی جان کل. 3000 سے زائد سانپ تھے اس کی امی کے پاس. او کی مائی سپا نہیں مشہور سی؟ ہاں، سپیروں کی بیٹی تھی نا وہ. جی میں تے تین بڑا بادشاہ سمجھا سی. میں ان کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ سیاستدان تے ویسے بہت اعلیٰ سی، لیکن میں دے کل کچھ زیادہ متاثر نہیں. کیوں متاثر کس سے تھے؟ متاثر میں صرف پورس کو نہیں ہویا. ایڈیڈیو دی اکھ سی، گورا چٹا رنگ پورس دا. یقین کرو سامنے آ جاندا سی دل نہیں سی کردا لڑن نوں. بہت بہادر آدمی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسے بہادری کے حوالے سے یاد رکھے. تے پھر دیکھ لو بہادر دا انجام کیوں ہے؟ پتر بھی مروا بیٹھا، خاندان بھی برباد کروا بیٹھا. تم نے موریہ خاندان بنوا کے کیا کیا؟ موریہ خاندان آج کدھر ہے؟ الٹیمیٹلی تو ہر چیز نے فنا ہونا ہے. یہاں پر پرماننٹ اور امارٹل تو صرف اللہ کی ذات ہے. اور تمہارے موریہ خاندان میں بھی اگر کوئی ڈھنگ کا بادشاہ تھا تو میرے خیال میں وہ اشوکا تھا. اشوکا دی گریٹ جس کو کہتے ہیں. تیدر جی نے پوری دنیا فتح کی تھی. تم شکر کرو تمہارا پالا نہیں پڑا اشوکا کے ساتھ، ورنہ مار مار کے تمہیں بندر بنا دیتا. اگے ہو گیا نا
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ये बेसिकली पटना के रिहायशी थे। पटना बिहार का इलाका, पटना का एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर बिहार का सर लालू प्रसाद जी, लालू प्रसाद यादव, और बड़ा मशहूर इलेक्शन स्लोगन उसका मुझे कभी नहीं भूलता कि जब तक समोसे में आलू रहेगा पटने बिहार में लालू रहेगा। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾਰਾ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਸੀ। वो भी एक आम आदमी था ना, राबड़ी देवी उसकी बेगम, और वो भी एक, लेकिन करप्शन के इल्जामात अपनी जगह। इंडियन रेलवे की शक्ल उसने बना के रख दी। उसने साबित कर दिया है कि अगर उस जैसे ज़हीन लोग किसी इंतहाई मरे हुए प्रोजेक्ट पर भी हाथ डालें तो वो एक इंतहाई कामयाब प्रोजेक्ट बन सकता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसके ऊपर रिसर्च की कि आखिर एक डेड हॉर्स को इतना अलाइव एक आदमी कैसे कर सकता है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ। नहीं ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਨ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। नहीं नहीं, मैं आप ही के बारे में, लालू आप ही का गिराई है। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਹਰ ਖੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਰਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਮੋਸਾ ਤੇ ਆਲੂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਾਇ ਸੀ? नहीं ये ना कि वो अवामी लोग तो इसी तरह होते ना। आप तो एक तरह के टेक्नोक्रेट थे, आप सियासतदान नहीं थे, सियासी मुदब्बिर थे। और 350 कबले मसीह इनका तारीख पैदाइश है। ये तक्षला यूनिवर्सिटी, टैक्सला में बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता था उस दौर का। वहां पर प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एंड लॉ। ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ में कुछ दसो, की हो गया है? अच्छा जनाब, तुम्हारा खानदान, बाप इसका नाज़िर बाकायदा बदशक्ल भी था, उसकी एक आंख नहीं थी। मां अलबत्ता इसकी खुश शक्ल और ठीक थी। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੂਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। नहीं, फिल्म में तो एंजेलिना जूली थी। ਅਸਲੀ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਚਾਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? चांकिया, चांकिया कोतलिया। ਚਾਂਕਿਆ ਕੁਤਲੀਆ। इन्हें विष्णु गुप्ता भी कहा जाता था। चांकिया, जिसे चनकिया कहकर मिसप्रोनाउंस करते हैं लोग, चनकिया नहीं है, चांकिया कोतलिया। और इनकी शोरा आफाक तखलीक अर्थशास्त्र, एक बहुत बड़ी किताब जिसका मुकाबला लोग मैकियावेली की किताब द प्रिंस से करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि द प्रिंस बहुत मुख्तसर किताब है। अर्थशास्त्र में उससे ज्यादा बड़े सब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से ट्रीट किया गया। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਆ ਜਰਾ ਘਟ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨੋਜ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਮੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ। अच्छा जनाब, उस दौर में हिंदुस्तान पर हुकूमत थी नंदा खानदान। सर वो कैसा खानदान था? निहायत करप्ट, घटिया और फजूल लोग थे, जिसकी बिना पर एक हमदर्द जो वजीर था दरबार का, वो इसे ले गया कि तुम बहुत बड़े टेक्नोक्रेट हो, हमें समझाओ कि करप्शन के खिलाफ हम कैसे लड़ सकें, क्या करें। तो इसे ले गया दरबार में। तो बादशाह ने इस पर कड़ी तनकीद की, इसकी बेइज्जती की कि तुम हमें करप्ट कह रहे हो, तुमने अपनी औकात देखी है, तुम एक घटिया छोटे लेवल के आदमी हो, कहां से उठ के आ गए हो। ਅੱਛਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਤਨੇ तुम घटिया हो जितने। ये की थी। इसने फिर वाव एक हलफ उठाया, कसम उठाई। इसने कहा कि जब तक मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला इस हुक्मरान से नहीं लूंगा तब तक मैं अपने बाल खुले छोड़ूंगा। अच्छा, तो ये बड़ी मशहूर कसम थी जो बालों के हवाले से इसने खाई। फिर इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बैठ के साजिश तैयार की कि ये कमजोर तरीन राजाओं में से इस वक्त है और नंदा खानदान अपनी आखिरी सांस ले रहा है, तो क्यों ना बगावत करवा दी जाए। तो फौज में इसने बगावत करवाई, खाना जंगी करवाई, और देखते ही देखते इतना बड़ा खानदान धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। यही वो मकाम था जब इसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके मौर्य खानदान की बुनियाद रखी, जो कि हिंदुस्तान के कामयाब तरीन हुक्मरान खानदानों में से एक था। सर ये भी हिंदू ही सी। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? नहीं, इसका मजहब, ये जैन मत पे यकीन रखने वाले लोग थे। और इसकी मौत भी बड़ी अलमनाक थी कि कत्ल के इल्जाम में इसे जंगल बनबास दे दिया गया। बनबास होता है कि जंगल में भेज दिया गया। बस सिर्फ आप वन में यानी जंगल में ही वहीं के बासी होके रहेंगे, शहर में नहीं आ सकते। तो इसकी मौत भूख से वाकई हुई। क्यों भी जंगल च होटल कोई नहीं सी? वो होटल वाली बात नहीं है, ये अपने ऊपर अहद कर लेते हैं कि मैंने खाना कुछ नहीं है अच्छा, और मैं भूख से ही मरूंगा। ये मौत का एक स्टाइल था जो ये खुद ऑप्ट करते थे।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਲ ਤੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। अच्छा ये बताओ कि इतने ज़हीनो फतीन होने के बावजूद झूठे क्यों थे? ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚ ਚ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਹਦਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਟਵਾਓ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰਮਾ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा ये बताओ कि तुमने भी इनकी तरह कोई किताब क्यों नहीं लिखी? ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਚਲੋ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ? बादशाह बहुत बड़े राइटर्स हुआ करते थे, बहादुर शाह जफर। ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ? तो तुम्हारा अंजाम कौन सा मुख्तलिफ था? वो तो फिर 60-70 साल जिंदा रह गया, तुम 32 साल की उम्र में फारिग हो गए। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। क्यों, उन्हें क्या हुआ था? ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। अच्छा, नरेंद्र मोदी को क्या मशवरा देंगे आप? ਮੇਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। आहा, वो क्यों भाई? ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੁਖੀ ਦੁਖੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा क्या क्या करें वो? ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੂੰ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹ ਕਰੋ, ਇਹ TOR ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਪੈਣੇ। आहा ਮੈਂ ਤੇ ਆਦਾਂ ਰਜ਼ਾ ਕਰਾਨਾ ਦੌਰ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਹਤਰੀਅਤ ਦੇ ਚੀ। आहा, सुन रहे हो मियां साहब? सर, ये चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर के साथ कोई मुलाकात हुई थी? बिल मुशाफा लंबी चौड़ी मुलाकातों की तो कोई तफसील नहीं है तारीख में, लेकिन कहा जाता है कि जिन दिनों इसने नॉर्दर्न पोठोहार पर कब्जा किया तो एक दौरा इसका रखा गया था तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, बतौर गेस्ट इसने जाना था। तो उसी यूनिवर्सिटी में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा करता था चाणक्य से। चाणक्य वॉज हिज प्रोफेसर। तो उसने कहा कि मैंने सिकंदर को देखना है। तो उसने कहा मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा। उसने कंधे पे उठाकर चंद्रगुप्त को दिखाया था कि ये है वो बादशाह जो आने वाले दिनों में तुम बनोगे। वाह। अच्छा जी ये बताएं कि भारत और पाकिस्तान आपको किस तरफ जाते नजर आते हैं? भाई जी गल कि काम में दोवां दे खराब हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि करप्शन बहुत है उधर भी और इधर भी। करप्शन ते हर दौर च रही है, ये वजह नहीं है। अच्छा जी, और क्या वजह है? वजह यदि कुछ हो रहे, बताए ना क्या वजह है? वजह है कि मुल्क टूटना ही नहीं चाहिए सी, यानी तकसीम नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए सी। दरिया सारे उधर रह गए, सरिया सारे तुहाडे कोल रह गए, उधरों पानी जिस टाइम चाह रोक लें तो तुहाडा बेड़ा गर्क। नहीं, हमारा बेड़ा गर्क, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। यही तो मसला है। तुहाडे कोल भी बड़ी चीजां आ गई ने। चीजों से क्या मुराद? ए तुहाडा एटम बम ना हुंदा ना, तुहाडा गुट भर लिया सी। किसने? हिंदुस्तान ने हो रही, इटली की गल हो रही है। तू भाई ये सुता तो नहीं? नहीं तो फिर करें क्या? जब मैं कह रहा हूं ना कौन, तो इससे मुराद है कौन सा सियासतदान, कौन सा स्टेट्समैन पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ता। आपकी मुराद मोदी से है? अब मोदी ते होना है, तुहाडा काम तो एल के अडवाणी ने पा देना सी। वैसे एलके अडवाणी की वजह से पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर पेस एक्सेलरेट कर दी थी। अगर वाजपेयी साहब जैसे लोग रहते, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग ही रहते, तो शायद पाकिस्तान अब भी इसी रास्ते पे चल रहा होता, कोई इतनी लंबी चौड़ी न्यूक्लियर अचीवमेंट ना कर सकता। लेकिन एलके अडवाणी जैसों ने इस पेस को एक्सेलरेट किया। अच्छा मैनू लगता है कि मैं इतने कटिंग कराना आया हूं। अच्छा मेरे ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, मैं ਇਹਦਾ ਗਨਮੈਨ नहीं। ਇਹ देखो सिकंदर दी ग्रेट, ओ ਇਹ निकल नहीं रही विच। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दिन रात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता, और आज हम आपको ले चलेंगे चाइना के कैपिटल बीजिंग। बीजिंग का पुराना नाम पीकिंग था, अब उसे बीजिंग कहा जाता है। इसके बड़े मशहूर चौक हैं जिनका जिक्र तारीख आलम में बहुत तवातर से होता है। एक टाइनामेन स्क्वायर, जब यहां पे मैसेकर हुआ था, बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ। फिर अल तहरीर स्क्वायर, ये स्क्वायर हैं जैसे क्रॉस नहीं हम कहते कि चौक हैं जिस तरह बड़े मशहूर। तो सर ये जो चेरिंग क्रॉस है, हाँ जी, चेरिंग क्रॉस लंदन में भी है और लाहौर में भी। बीजिंग के लोग बड़े खुश इखलाक मशहूर हैं। कहा जाता है कि अक्सरियत हर एक से मुस्कुरा के मिलती है। क्यों पागल ने सर? ये पागल वाली क्या बात है? ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। तो बस देख लो ना, अपना और चाइना का मुकाबला देख लो। हालांकि जिस दीन के, जिस मजहब के आप मानने वाले हो, उसका बहुत जोर है खुश इखलाकी पर। हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चैरिटी करो, खैरात करो, इवन स्माइल इज चैरिटी। यहां की आबादी का 10% अपना नाम वैंग रखता है, ये सर नेम के तौर पे, जो खानदानी नाम कहलाता है। जिस तरह यहाँ पे मियाँ है। सर मियां तो होता था। होता था से क्या मुराद है? मियाँ मौजूद है, कमाल है। इन्होंने नाम मियां है।
ये भी नहीं है। हाँ इन हर बुला कर मियाँ माफ कर। बीजिंग की दूसरी इंतहाई अहम चीज, सच पूछे तो बीजिंग की सबसे अहम चीज दीवारें चीन है। सर दीवारें चीन का की रौला है तो एक कंध ही है। ये तुम्हारे ख्याल में ये एक दीवार है छोटी सी जो किसी बिल्डिंग के इर्द गिर्द है? हाँ जी। नहीं सर, ये तो बड़ी लंबी दीवार है कहते ये हैं। 5000 किलोमीटर लंबी फसील है। सर मसला की बनान दा ये क्वीन शाही हुआंग था, वहां का पहला बादशाह, और इसने क्यों बनाई थी? वहां पर उस वक्त राज हुआ करता था बदमाशों का। ये जो नोमैडिक ट्राइब्स थे, खाना बदोश बारबैरिक थे, वैशी कबीले, ये हर दूसरे तीसरे दिन चढ़ दौड़ते थे चाइना पर, उन्हें चाइना से बाहर रखने के लिए। और ये बात तकरीबन 500 साल कबले मसीह की है। इसको मुकम्मल होने में एक तवील अरसा लगा। 2500 साल पुरानी दीवार है ये। यानी उस बादशाह का सारा खानदान कंध ही बनाता रहा। खानदान क्या, पूरा चाइना बनाता रहा होगा। और ये इस कदर चौड़ी है जिसे तुम एक कंध कह रहे हो कि इस पर एट अ टाइम 8 घोड़े दौड़ सकते हैं। घोड़े कोचवान कहते होने बगैर था किथे ले जो डिग पे। मैं घोड़ों की बात करूं, कोच कहां से आ गई? 8 घोड़े घोड़सवार दौड़ाते हैं, कोचवान किधर से आ गया? जो घोड़सवार होता है वो कोचवान नहीं होता, वो प्लम्बर होता है। क्या बेतुकी बेहुदा बात कर रहे हो? थोड़ी देर बाद कोड़े कहने लग गए एक कितने मुगड़ी है। कोचवान उसको कहते हैं जो कोच चलाता है। कोच कभी नहीं देखी एक ऐसी गाड़ी जिसे घोड़ा खींचता है? टांगे की एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड शक्ल जो यूरोप में नजर आती थी, यहां भी आती थी नजर एक जमाना, अब तो खत्म हो गई। गाड़ी से पहले, कार से पहले कोच हुआ करती थी। उस कोच को चलाने वाला, जैसे गाड़ी बान, रेड़ी बान, टांगा बान, कोच बान, ये कोच बान को कोचवान कहा जाता। सर मैंने माफ कर। अच्छा जी, फिर 14वीं 15वीं सदी में इस दीवार को रिपेयर करवाया गया और इसका क्रेडिट जाता है मिंग डायनेस्टी को। बड़ा मशहूर हुक्मरान खानदान यहां का मिंग डायनेस्टी। सर दी और की खास गल है मिंग की या दीवारें चीन की? सर मैं मिंग सिर च मारना है। मैं दीवार की गल कर रहा। दीवारें चीन वह चीज है जमीन की जो चांद से भी नजर आती है। फिर यहां पर नेशनल म्यूजियम ऑफ चाइना, माओ का मकबरा, माओ जो सही मानों में फादर ऑफ द नेशन है, उसका मकबरा वहां पर। और मॉडर्न चाइना का अगर कोई बाप है तो वो डेंग सियाओपिंग है, बहुत बड़ा स्टेट्समैन था वो। अच्छा जनाब, बीजिंग का एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। तो पहला केड़ा है? पहला है एटलांटा। एटलांटा कहां है? अमेरिका। अमेरिका की कौन सी रियासत में? मैं को कोलंबस दा बेनोई नहीं है। ये जॉर्जिया का कैपिटल है। जॉर्जिया बड़ी मशहूर रियासत। सारा जॉर्जिया किस पास से हुई? ये ईस्ट कोस्ट पे, साउथ में, बिल्कुल साउथ में, साउथ कैरोलिना के फौरन बाद आप वॉशिंगटन से निकलें, ये तो बस चलाओ। ये राउट 95, वही जो इंटरस्टेट हाईवे है उनकी, बड़ी मशहूर 95, उसी के ऊपर आप साउथ में आते जाएं, वर्जीनिया, कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, उसके फौरन बाद। अच्छा जी, इस शहर में साइकिल सवारों के लिए एक अलहदा सड़क है और वहां पर 50,000 बाइसिकल्स हैं जो डेली बेसिस पर किराए पे दिए जाते हैं। इतना गरीब मुल्क है सर। यार कमाल कर रहे हो। देखिए कैसी दानाई का सबूत दिया उन्होंने पोल्यूशन कम करने के लिए। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वहां पे क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है। इस मुल्क की तो आबादी वैसे ही 1 अरब से ज्यादा, इंडिया से ज्यादा आबादी है। चाइना में और कोई काम नहीं। अब तो उन्होंने आबादी पे ऐसा कंट्रोल किया कि अकल दंग रह जाती है। काश हम भी कुछ इस किस्म की पॉलिसी अपना सकते हैं। बीजिंग को इस्लामाबाद का सिस्टर सिटी भी कहते हैं। वो क्यों सर? ये खैर सगाली का एक तरीका होता है कि जिस तरह ग्लासगो और लाहौर, ये इस्तांबुल भी उसी फैमिली का हिस्सा है, इसी तरह बीजिंग और इस्लामाबाद सिस्टर सिटीज हैं। यहां पर जाते हुए इस बात का ख्याल रहे कि टैक्सी ड्राइवर्स की अक्सरियत को इंग्लिश नहीं आती। आप फ्रेज बुक साथ लेकर जाइए, अंग्रेजी की वो जो एक किताब होती है, ऐसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाए वहां जाए। सर तानु किने दसा कि असि चाइना जा रहे हैं? हाँ नहीं, तुमने चाइना क्या करने जाना? तुम जाओगे इंग्लैंड, तुम जाओगे अमेरिका, तुम वहां जाओगे जहां पर हल्ला गुल्ला है, शोर शराबा है। लेकिन याद रखो फ्यूचर चाइना का है।
करंसी इसकी युआन है। इससे मुझे याद आया इसकी करंसी बहुत अहम रोल प्ले करने वाली है इंटरनेशनल इकोनॉमी में। यहां पर फिल्में लातादाद शूट हुई हैं, लेकिन 7 Years in Tibet बहुत शानदार फिल्म थी। ब्रैड पिट की फिल्म थी। अगर आप एडवेंचर देखना चाहते हो, स्ट्रगल के ऊपर फिल्म देखना चाहते हो, वॉर का बैकग्राउंड है, तो 7 Years in Tibet आपको बहुत पसंद आएगी। फिर एक इंडियन फिल्म बड़ी मशहूर थी अक्षय कुमार की, चांदनी चौक टू चाइना। इसने भी ठीक ठाक बिजनेस किया था। फिर पुलिस स्टोरी, ये 2013 की एक अच्छी फिल्म थी, ये भी बीजिंग में शूट की गई। यहां की मशहूर शख्सियात में चियान काई शेक, सन यात्सेन, माओ जेतुंग, चो एन लाई। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ये यहाँ के सरबराहान थे। चियान काई शेक बादशाह था, सन यात्सेन भी बादशाह था, माओ जेतुंग चेयरमैन था सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ माओ ਵਾਰੀ। जेतुंग तो बहुत बड़ा आदमी था। फिर जी जिनपिंग, ਆਏ ਆਏ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਲਕਵੇ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ये मौजूदा सदर है वहां के, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ। और इनकी बेगम मेजर जनरल है। सर ये वही प्रेसिडेंट है जो पिछले साल पाकिस्तान भी आए थे। जी जी, जिनकी वजह से ये आपने सी पैक का इतना बड़ा मंसूबा आपको मिला, आपके साथ साइन करने वाले वो थे। अब आइए यहाँ के ख्वाबों की तरफ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। मशहूर तरीन डिश जो है वो है पीकिंग डक, यानी पीकिंग की बत्तख। ਇਹ ਬਤਖ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ जी, ये रोस्टेड बत्तख है। उसके ऊपर आप सोया सॉस लगाते हैं बहुत ज्यादा, उसके ऊपर धनिया, काली मिर्चें, जीरा, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਤਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये डाल के आप इसकी एक पेस्ट बनाते हैं और इसके ऊपर अच्छा लेप करके इसे तकरीबन 2 घंटे फ्रिज में रखते हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर शहद का लेप किया जाएगा। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤਖ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ये आलू बुखारे का जैम होता है, अच्छा जी। वो लगाते हैं इसके ऊपर शहद के साथ। फिर इसके ऊपर नट्स छिड़कते हैं। ਕਿਹੜੀ cashew nuts। ਬਤਖ ਹੈਗੀ? ਐਡੀ ਕੁ ਬਤਖ ਹੈ? फिर इसे आधा घंटा रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने के बाद इसको लेप करते हैं शहद का या आलू बुखारे के जैम का। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। फिर 5 मिनट के लिए मजीद रोस्ट करते हैं इसे। ਇਹ ਬਤਖ ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? आखिरी आइटम इसके ऊपर है कटा हुआ प्याज, धनिया और माल्टा। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਤਖ ਦਾ ਬੰਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये बहुत डिलिशियस चीज समझी जाती है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਇਹਨੂੰ ਖਾਈਦਾ ਨਹੀਂ। अच्छा जी, फिर है गोंग बाओ चिकन विद पीनट्स। अच्छा। छोटे छोटे क्यूब्स बनाए जाते हैं चिकन के, उन्हें अच्छी तरह उबाला जाता है, फिर सॉस में पकाया जाता है। छोटे छोटे प्याज के, टमाटर के, अदरक के टुकड़े, उन्हें अच्छी तरह ऑयल में फिर रोस्ट किया जाता है। फिर उनमें मुर्गी डाली जाती है। रोस्ट करते करते जब वो चमकदार ब्राउनिश रंग इख्तियार कर ले तो फिर उसके अंदर पीनट्स डालते हैं। ਵਾਹ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਬਤਖ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨੇ? ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਡਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਬੁਕਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? नहीं, बकरे के ज्यादा शौकीन नहीं है। ਬੱਕਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद हजरात, जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म जंगली से। शंकर जयकिशन की नहायत शानदार कंपोजिशन, गाया मोहम्मद रफी ने। पेश करने जा रहे हैं एक नया चेहरा, सोहराब अली खान जी।
सुपर सुपर, बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत खूब। वेलकम बैक जी। खबर है कि शारजा में मैनेजर की आंखों में मिर्चें डालकर 50,000 दिरहम लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। सजना मैं गमा दे अजाब विच रहना, इसलिए ते डुबिया शराब विच। इस मोटे ने पूरी गल च सिर्फ शराब दी समझ आई है। सारे दसो ये तो वो ग्रोह लग रहा है। नहीं लग क्यों नहीं रहा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम पाकिस्तानियों को बदनाम करते हो वहां जाके। की बदनाम किया जी असी? ये जो मिर्चें आंखों में डाली हैं, जनाब मिर्चा ही पानी सन होर फलूदा पा देंगे अखां च, वो महंगा हुंदा। ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। वो कैसे? ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਯਾਰ तू चुप क्यों बैठा है? ਉਧਰ ਜਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਖੈਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਮੇਰਾ 9 ਵਾਰੀ ਆਟਾ ਰੋੜਦਾ। अच्छा ये मारदा मोड़दा नहीं, सिर्फ घूरदा ही है। यार हर वक्त टकरे क्यों मारता रहता है? ਇਹ ਜੀ ਭੇਡੂ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਆ। ਵੱਲਾ ਬਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਲ ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਐਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਹੰਟਰ ਵੀ ਮੋਟੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹੰਟਰ ਫੜਾਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਖੰਭਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਬਾਸੀ ਨਾ हाँ तेरे लिए करन दिया। अच्छा इनमें से एक तो अरब है, पक्की बात। हाँ जी, दूजा दूसरा है ना वो पाकिस्तानी है। हगा पाकिस्तानी है पर वो नालों ज्यादा सख्त है। ये बड़ी ट्रेजेडी है वहां पर जो पाकिस्तानी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कर रहे हो, जिनके पास थोड़ी सी अथॉरिटी हो या शुरता हो, तो वो अरब्स की निस्बत कई गुना ज्यादा सख्ती करते हैं अपना आप साबित करने के लिए कि हम कितने बड़े अफसर हैं। मैं भाई फेरूदा इसलिए फिरदा रहता है। कोई मिट्टी दा तेल होवे इन्हू कोई ना दवे, इन्हें आग ला लेनी है। एडा नैशा गाने च भी चीजा मांगते ही है। अच्छा मैं शक्ल देखता मैंने लगता मैंने फांसी हो गई है। कल सजना दा जेल होवे साडी सजा ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। तेन की गल है? तो क्यों रो क्यों रहा है ये? एक कमजोर ही ना रोंदा है जी। वल्ला वो मस्ती नहीं। अच्छा मोटे को भी इन्नी की अरबी है, बाकी नीरा डेढ़ ही है। कोई इथे इंतजाम नहीं, यकीन करो इथे आके अपनी पाकिस्तान दी जेल इन्नी याद आती है। शाम दा वादा करके टुरिया इतनी देर सजन क्यों लाई? अब क्या हुआ? मेरे ख्याल कड़ार पै गया सी। क्या है? मैंने लगता किसी गूंगे तो शाह रोड़ी हुई है। वास्ता ही चन्नो लाजर की भाई इन्ने गाने गाउंदे अही तेरे तमाशबीन लगन दे। साडी जान ते बनी है। ओए गल सुनो। हां जी टाइम ते साडा इथे लंघना ही है। हां जी ए मोटे ने किवें गल्लां च ला के ना मुतासर करिए। अच्छा ओए तू इनु बांदर बन के बगा। ये बांदर बनया जो हाथी बन के मोड़ एटम वो विखाओ जी सार सको। हां छाती ते डिग भी पैंदा ना यार गल सुन। हां जी तू खोता बन सकना मुड़ो ही गल नाला घुट के बन बैठा। अच्छा जी अपना किधर गया भाई तंबू? उन्हें धक्का नहीं दिता अजे, सिर्फ उन्हें खींचिया ही है। हेलो शेख हाजा मुलाकात इजाजत। अच्छा मेरे ख्याल है साढ़े च किसी की मुलाकात आई है। अच्छा हाँ अल्लाह करे। भेज दे या अल्लाह को मेरा ही होवे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय हाय किथे बैठे हो तुसी? इधर ते तको मैं आई हां। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ए नहीं 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 इधर आ जा जी। एक मिनट हम तेरा रोना भूल गया। किधर ऐसे वास्ते नहीं ढूंढना तू? ओए तो मेरी बीवी है।
ਹਾਏ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ पे लगदे हो। सारे पाकिस्तानी है भरजाई। सिर्फ तेरा बंदा सुडान दा है। मैं क्या चाचा जी वे परे वे भाई मुछड़ वे तू केड़ा केस च आया है? ਇਹ ਬਾਜੀ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। और कुत्ते ने तो पर्चा कराया है। ते तू वे पाटे शॉपर दे मुंह वालिया मैं पनामा लीक च मेरा नाम आ गया है। हाय अल्लाह सारियां मोटियां सामियां पनामा ली की थी ने। भरजाई अच्छा वे- तुम यहाँ तबसरे करने आई हो? नहीं जी मैं ते इन्हां दे भणवैये नूं मिलण आई ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਬਾਜੀ की वे ਮੈਂ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਅੰਦਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। और हर बार ये होता है, दूसरा बंदा नहीं होता। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਇਆ ਵੇ? मैं हजे करना। भरजाई दुआ कर साडियां भी जमानतां हो जान। मैं ते आप होई चाहनी अल्लाह खैर दल घर आण। ਬਾਜੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਕਿਉਂ ਵੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਏ ਜਿੰਜ ਜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। असल ते अरब च तेल निकले ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਈ ਉਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਮਦ ਹੈ ਤੇਰਾ। जी ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ? ना पुत्र माशाल्लाह ਲੋ ਜੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ। जी ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ 250-300 ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ 250-300 ਹੋਣੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਬਾਜੀ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। बड़ा ही याद करदे ने रोंदे ने इन्हां दे बगैर। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? माशाल्लाह इन्हां ते ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੂੰਬੜ ਏ, ਕੋਈ ਕਿਰਲਾ ਏ, ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਏ। ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। मेरे बच्चे ते इन्हां दे नाल सौंदे हुंदे सर। बच्चे तेरे अन्ने हैं? मैं ते कहनी अल्लाह तुहानू भी मेरी जिंदगी ला देवे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੇਵੇ। इन्हां ने दुआ सी इन्हां दी अम्मी दी कि तू 11 पुत्रां दा मुंह धोना है। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਨੋਈ ਆ। ਭਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਾਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਏ, ਏ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। तो नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।